क्या तुम्हें पूरा यकीन है? کلین نے سوال کیا۔ قطعی جناب، عصمت نے جواب دیا۔ ای میل پر جو تاریخ تھی ویسی ایک ہی تقریب ہوئی ہے جہاں ایک ہی سند ایوارڈ کی گئی تھی، جنرل فرینک رچرڈسن کو۔ کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں جان۔ کلین کی آواز میں دبا دبا جوش تھا۔ یہ ایک نیا موڑ ہے جو تمہیں اپنی راہ عمل متعین کرنے میں آسانی فراہم کرے گا۔ کلین کی آواز آئی۔ نیا منصوبہ بنانے میں عصمت نے 2 گھنٹے صرف کیے اور تفصیلات کلین کے گوش گزار کر دیں۔ اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے جان۔ میرے خیال میں تمہیں تنے تنہا اس آگ میں نہیں کودنا چاہیے۔ یقین کریں سر، اگر پیٹر ہوتا تو میں اسے ساتھ رکھتا، لیکن وقت کم ہے اور یورپ میں اس کی ضرورت ہے۔ تمہیں کتنا وقت درکار ہے؟ جن جزیات کا میں نے ذکر کیا ہے آپ تیار رکھیں تو میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ عصمت نے جواب دیا۔ میری طرف سے اوکے سمجھو، لیکن تمہیں ایک ٹرانسمیٹر پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ عصمت نے فون پر حامی بھری۔ اگر کچھ غلط ہوا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ میں کتنے فاصلے پر ہوں۔ بعد ازاں رابطہ منقطع ہو گیا۔ عصمت نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ننھا فائبر آپٹک ٹرانسمیٹر نکالا۔ اسے گھورتے ہوئے اس کے خیالات بھٹکنے لگے۔ تصور میں یوری ڈانگ کو نظر آیا۔ اس کی بیوہ کا خیال آیا، وہ تمام افراد جو اب تک کینڈرا کمپیکٹ کی قربان گاہ کی بھیڑ چڑھ چکے تھے، اور آگے یہ راہ اجل کہاں تک جائے گی، یا وہ اس زہریلی سازش کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پیٹر کا دیا ہوا نمبر ملایا۔ نمبر کون کہاں سے ملا رہا ہے یہ کھوجنا ناممکن تھا۔ دوسری جانب گھنٹی بجنا شروع ہوئی۔ عصمت نے ہلکا سا تناؤ محسوس کیا۔ کچھ دیر بعد ایک غیر انسانی آواز ابھری۔ آواز الیکٹرانک ڈیوائس سے گزر کر آ رہی تھی۔ صرف ایک لفظ، یس۔ میں ڈریک زخمی ہوں، واپس آ گیا ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں۔ رچرڈسن نے فی الفور سگار بجھا دیا۔ پھر کہو۔ ٹوٹی پھوٹی آواز آئی۔ ڈریک زخمی، اندر آ رہا ہوں۔ سیف باؤنس الفا میں جاؤ۔ دہراتا ہوں، سیف باؤنس الفا، کاپی کاپی۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ رچرڈسن بند فون کو گھورتا رہا۔ دفتر میں سکوت گہرا ہوتا گیا۔ بس دیوار گیل گھڑی کی ٹک ٹک۔ ڈریک زخمی، ناممکن۔ رچرڈسن نے منجھے ہوئے کمانڈر کی مانند فیصلہ کیا۔ پہلی مختصر کال بیرک میں کی، دوسری کال NSA کے ڈپٹی ڈائریکٹر انتھونی پرائس کو۔ وہ دونوں افراد کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران اس نے جدید ریکارڈنگ آلات کی مدد سے کال پھر سنی۔ آواز غیر انسانی تھی لیکن کافی بگڑی ہوئی۔ ڈریک زیادہ دور نہیں تھا، سیف ہاؤس الفا تک پہنچ جائے گا، لیکن وہ تو مردہ ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں افراد اس کے دفتر پہنچ چکے تھے۔ پرائس کے ساتھ دوسرا آدمی ایک مضبوط جسم والا فوجی تھا۔ وہ ڈیورنگ جنرل ٹریور نیکولس سے سیلیوٹ کیا۔ ڈرنک لو سارجنٹ، تمہیں ضرورت ہے۔ جنرل نے بار کی جانب اشارہ کیا اور پرائس سے ہاتھ ملایا۔ پرائس نے نیکولس کی جانب دیکھا۔ اس کا ایک ابرو سوالیہ انداز میں پیشانی پر چڑھ گیا۔ جواب میں رچرڈسن نے ریکارڈ کا بٹن دبایا۔ دونوں افراد کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ نیکولس کے چہرے پر شدید حیرت تھی اور پرائس کے تاثرات میں تشویش۔ ڈریک کیوں کر کال کر سکتا ہے؟ پرائس نے مطالبہ کیا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ سر، ڈریک کو میں نے اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھا ہے۔ چھرے کا وار جان لیوا تھا۔ نیکولس نے جنرل کو دیکھا۔ کیا تم آخری سانس تک اس کے پاس رہے تھے؟ پرائس غرایا۔ پرائس بس کرو، رچرڈسن نے مداخلت کی۔ سارجنٹ، میں نے تمہاری رپورٹ پڑھی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم خود مسٹر پرائس کو جزیات بتاؤ۔ یس سر۔ نیکولس پرائس کی طرف متوجہ ہوا۔ پرائس نے اس کی کہانی سنی، چند ایک سوالات کیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ نیکولس نے احکامات کے مطابق ایکشن لیا۔ رچرڈسن بولا، سوال یہ ہے کہ ڈریک کی جگہ کس نے لی ہے؟ پیٹر ہاول کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ پرائس نے جواب دیا۔ رچرڈسن نے نیکولس کو دیکھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، سارجنٹ نے اتفاق کیا، لیکن ایک بات مشکوک ہے۔ اس نے سیف ہاؤس الفا کے بارے میں کیوں نہیں معلوم کیا؟ پھر وہ اور عصمت ساتھ کام کرتے رہے ہیں، لگتا ہے اس نے اطلاع عصمت تک پہنچائی۔ کال عصمت نے کی ہوگی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، رچرڈسن نے سر ہلایا۔ عصمت؟ رچرڈ، تم ایک بار ہمیشہ کے لیے عصمت کا مسئلہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ ہاں۔ رچرڈسن کے جبڑے بھج گئے۔ نیکولس، تم سیف ہاؤس پہنچو۔ عصمت جوتوں سے لے کر ٹوپی تک تمام تر سیاہ لباس میں تھا۔ بیتھسڈا سے نکل کر وہ روانہ ہوا تو متواتر عقب میں نکاح رکھے ہوئے تھا۔ گاڑی نے U2 میں کراس کیا اور فیئر فیکس کاؤنٹی ورجینیا میں داخل ہو گئی۔ رات کی اس پہر ٹریفک کم تھا۔ وہ تیز رفتاری سے سیف ہاؤس الفا کی طرف رواں تھا۔ 3/4 میل کے فاصلے پر اس نے گاڑی درختوں کے جھنڈ میں روک دی، پشت پر موجود بیگ کو شانوں کی جانب سے ٹھیک کیا اور جاگنگ شروع کر دی۔
अल्फा से कुछ दूर आड़ में रुककर उसने जायजा लिया। आहनी बाड़ की बालाई सतह तेज धार और नुकीली थी। गेट पर मौजूद ताला वजनी और जंग से पाक था। ताले के अलावा गेट के दोनों हिस्सों के दरमियान ताले के करीब मोटी जंजीर भी लिपटी हुई थी। लैंप रोशन थे, पार्किंग सुनसान थी। ज़ेरे इस्तेमाल है, लेकिन इस्तेमाल में नहीं, इस्मत बुड़बुड़ाया। इस्मत का वास्ता इस किस्म के मकामात और इमारतों से पैरता रहा था। उसने एहतियात से फासला बरकरार रखते हुए इमारत का चक्कर मुकम्मल किया। उसने एक जगह मुंतखब कर ली जहां बाढ़ दरिया के किनारे को छूती थी। वो चिकनी पहाड़ी नुमा चट्टानों पर चढ़ा और जस्ट लगाकर बाढ़ पार कर ली। कुछ देर वो पुरनम जमीन के साथ चिपका रहा, फिर उठकर दौड़ लगाई और वीरान पार्किंग से गुजरकर दीवार के साथ खड़ा हो गया। वो बसारत से ज्यादा संवाद पर जोर दे रहा था। हशरातुल अर्ज़ की मधम आवाज़ों के सिवा कुछ न था। ताहम उसकी छठी इस ऐलान कर रही थी कि वो तन्हा नहीं है। उसकी मुख्तसर कॉल ने मकड़ जाल को मुर्ताइश जरूर किया था, लेकिन मकड़ा नजर नहीं आ रहा था। इस्मत ने दीवार के साथ लगे लगे हरकत शुरू की। 3 मंजिल ऊपर ट्रेवर निकोल्स नाइट विजन के जरिए इस्मत के साए को देख रहा था। उसने इस्मत को बाढ़ फड़ांगते वक्त ही पकड़ लिया था। वही मंतकी गुजरगाह थी। फौजी की जहनियत से वाकिफ था। निकोल्स हेलीकॉप्टर के जरिए आया था और इस्मत के आने से काफ़ी पहले पहुंच गया था। उसने सेफ हाउस का अंदर बाहर से खूब जायजा लेकर अपनी हिकमत अमली मुरतब की और इस्मत का इंतज़ार करने लगा। इस्मत के पहुंचने पर उसने तारीख खिड़की छोड़ दी। कंक्रीट की गिरद आलूद फर्श पर क्रैप सोल शूज किसी किस्म की आहट पैदा नहीं कर रहे थे। सीढ़ियों पर आकर उसने साइलेंसर लगा कॉलेट वुडस हाथ में ले लिया। अशारिया 22 का खामोश कॉलेट कातिल का हथियार था। निकोल्स इस्मत का चेहरा देखना चाहता था। गोली खाते वक्त वो इस्मत के तासुरात देखने का ख्वाहिशमंद था। उसकी आंखों में मौत की दहशत देखकर उसे खुशी होती। पीटर के हाथों ड्रेक की मौत इस्मत की वजह से हुई थी। वो ये भूल गया था कि अपने साथी के साथ वो पीटर को कत्ल करने गया था। पीटर क्या करता? वो ये भी भूल गया था कि पीटर ने जख्मी हालत में उसे छोड़कर एक मौका दिया था। उसके बजाय निकोल सोच रहा था कि पहली गोली वो इस्मत के पेट में मारेगा, जैसे ड्रेक ने पीटर के हाथों पेट में जख्म खाया था। 2 मंजिल नीचे आकर वो लैंडिंग पर रुक गया, फिर ग्राउंड फ्लोर पर आकर थम गया। वो जानता था कि वहां मौजूद दरवाजों में से सिर्फ एक दरवाज़ा बज़ाहिर बंद था। बाहर से उसे खोलने के लिए इस्मत को कुछ नहीं करना था। ग्राउंड फ्लोर के सतूनों की आड़ लेता हुआ निकोल्स मखसूस दरवाजे के करीब हो गया। वो और उसका हथियार दोनों पूरी तरह तैयार थे। इस्मत एक के अलावा तमाम दरवाजों को आजमा चुका था। वो बचे हुए अकलौते दरवाजे को घूर रहा था। उसके अंदाजे के मुताबिक फर्जी ड्रेक को इसी दरवाजे से गुजरना था। इस्मत नहीं जानता था कि उसने फोन पर किससे बात की थी। अंदर कौन उसका या मुर्दा ड्रेक का मुंतजर था? वो एक था या अंदर एक से जायद अफराद थे? क्या इस्मत को अकेला आना चाहिए था? उसने सर झटका और पुश से बैग उतार कर खोला। बैग से रबर की गेंद नुमा शय निकाली, साथ ही हॉलिस्टर से 6 आवर निकाल लिया। एक हाथ में बैग और गेंद नुमा शय थी, दूसरे हाथ में गन। इस्मत ने पैर से दरवाजे के ज़ेरी हिस्से पर हल्का सा दबाव डाला। दरवाज़ा खुला था। उसने पैर का दबाव बढ़ाया, दरवाज़ा खुला। इस्मत ने एक कदम अंदर रखा। दफतन कोई शय उसके सीने से टकराई। तसादुम शदीद था। वो लड़खड़ाया, बैग हाथ की गिरफ्त से निकल गया। दूसरे तसादुम पर वो चकरा कर दीवार के साथ जा लगा। सीने में चिंगारियां भर गईं। उसने खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन घुटने मुड़ गए। दीवार के साथ फिसलते हुए उसने एक साया देखा जो सुतून की आड़ से निकल रहा था। इस्मत के हाथ में मौजूद गेंद इंस्टेंट ग्रेनेड था। अंगूठे से पिन हटाकर उसने कमजोर शुरू की। 6 आवर इस मौके पर इस्तेमाल करना हिमाकत थी। वो ठीक निशाना लेने की पोजीशन में नहीं था। गेंद उछालकर उसने आंखें बंद की, कानों पर हाथ रखे और दीवार के साथ जमीन से चिपक गया। निकोलस पुरएतमाद शिकारी की मानंद इस्मत की तरफ बढ़ रहा था। निशाने पर 2 गोलियां काफी से ज्यादा थीं। उसकी सोच में रखना उस वक्त पड़ा जब उसने गेंद नुमा शय उछलते देखी। जबलत और तरबियत के बायस उसने तेज रद्द अमल पेश किया, ताहम आंखें बंद करने में उसे 1 सेकंड की ताखीर हो गई। इंस्टेंट ग्रेनेड किसी सुपरनोवा की मानंद फटा। बेपनाह रोशनी ने निकोलस को अंधा कर दिया। आवाज की अनदेखी लहर के तसादुम ने उसे ज़मीबोस कर दिया। निकोलस जवान और फिट था, तरबियत याफ्ता था। आंखें खोलते वक्त वो हरासा नहीं था, अगरचे कुछ देखने से कासिर था। निगाह के सामने सफ़ेद चादर तनी हुई थी। गन उसके हाथ में थी। चंद सेकंड बाद बिनाई वापस आई, ताहम उसने फौरन उठने से परहेज किया। वो इस बात से आगाह था कि इस्मत के सीने में 2 गोलियां उतार चुका है।
इसे थोड़ा इंतजार करना था। अचानक दूर कहीं सायरन की चीख उभरना शुरू हुई। वो खड़ा हो गया। नज़र पूरी तरह साफ नहीं थी, ताहम वो खिड़कियों को देख सकता था। उसने खिड़की से देखा, तारीकी में दरख्तों के दरमियान दो सुर्ख धब्बे करीब तर होते जा रहे थे। लानत है, इस वक्त अकेला नहीं था। किसको लाया है? कितने अफराद हैं? वो पलटा, निगाह साफ हो चुकी थी। वो इस तरफ भागा जहां इस्मत गिरा था। इस्मत गायब था। सायरन की आवाज़ वाज़ेह हो गई थी। इस्मत का बैग वहीं पड़ा था। निकोलस ने बैग उठाया और भागता हुआ उकबी दरवाजे से निकल गया। उसे खतरे से दूर होने में देर नहीं लगी थी। 2 अदद सेडान गाड़ियां करीब पहुंच चुकी थी। आने दो, उन्हें लाश के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, निकोलस ने सोचा। मेगान पैनल के ढीले लटकते हुए तारों को घूर रही थी। मायूसाना ख्यालात को दूर धकेलने की कोशिश में मसरूफ थी। उसने तारों के साथ मुख्तलिफ टर्मिनल्स के कम्बिनेशन आजमाए थे। हर मरतबा नाकामी के बाद उसका जहन उलझ गया था। शटल का एयर लॉक डोर मजबूती से अपनी जगह पर मौजूद था। एक चीज़ रह गई थी, उसका माइक। ताहम अभी वो उसे आजमाना नहीं चाहती थी। पुरसुकून रहो, उसने खुद को हिदायत दी। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा, सिर्फ तुम्हें तलाश करना है। ये अमर पागल कर देने के लिए काफ़ी था कि लॉक्ड डोर के दूसरी जानिब महज चंद फुट दूर रीड मौजूद था, जो इमरजेंसी लीवर के जरिए दरवाज़ा खोल सकता था। लेकिन उसने दूसरों की मानंद मेगान को भी मरने के लिए छोड़ दिया था। मेगान ने सर तोड़ कोशिश कर ली थी। उसकी नाकामियों से पैदा होने वाली मायूसी में दहशत का अंसर रीड की वजह से शामिल हो रहा था, जो मेगान के जिंदा वजूद से बेनियाज कई घंटों से ग्राउंड कंट्रोल पर हैरी लंदन से राब्ते में था। वह हैरी को मरने वालों के बारे में तफसील से बताता रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे किसी हॉरर फिल्म की मंजरकशी के बारे में बता रहा हो। मेगान के लिए रीड की शख्सियत का ये रुख कतई अजनबी और भयानक था, गैर इंसानी। वो इंसान नहीं, खूनी दरिंदा था। वो अरसे तक इस दरिंदे के साथ काम करती रही और गाफिल रही। लेकिन वो स्मॉल पॉक्स डिस्कवरी पर कैसे लाया? किलीन ने बताया था कि ट्रेवलर किस तरह बायोपर्ट से स्मॉल पॉक्स अमेरिका लाया, लेकिन वो तो वाशिंगटन पहुंचते ही मारा गया। स्मॉल पॉक्स का नमूना लॉन्चिंग साइट पर कैसे पहुंचा? फिर मेगान को वो रात याद आई जब रात की तारीकी में रीड किसी अजनबी से मिला था। अजनबी ने कोई शय रीड के हवाले की थी, उसके सिवा कोई तौजीह पेश नहीं की जा सकती थी। मदार में पहुंचने के बाद रीड ने स्मॉल पॉक्स बायो फ्रीजर में मुंतकिल कर दी होगी। खिलाई तजर्बागाह में पहला तजर्बा मेगान को करना था। वो पैगाम कहाँ से आया था जिसकी वजाहत कहीं से नहीं हुई और उसे इत्तेफाक पर महमूल किया गया। लेकिन पैगाम के मुताबिक रीड ने मेगान की जगह ले ली। मेगान वो मुअम्मा हल न कर सकी। रीड ने किसी को ज्यादा सवालात करने का मौका नहीं दिया था। किसी को खबर न हुई कि वो खिलाई तजर्बागाह में स्मॉल पॉक्स पर क्या तजर्बा कर रहा था। मेगान ने वहशतनाक हकीकत को कबूल कर लिया था। रीड के नज़दीक वो मुर्दा थी। रीड की कमेंट्री के मुताबिक डिस्कवरी में सिर्फ रीड ही जिंदा बचा था। मेगान ने एक बार फिर वायरिंग पैनल की तरफ तवज्जो मरकूज कर दी। ज़मीन पर ग्राउंड कंट्रोल से रीड ने जो बातें की थी वो मेगान अपने हेडसेट में सुनती रही थी। ताहम रीड को परवाह नहीं थी। वो जानता था कि मेगान का बचना नामुमकिन है। हैरी लंदन शटल की वापसी की तैयारियां कर रहा था। कुछ करने के लिए मेगान के पास काफ़ी वक्त था। वो जहां फंस गई थी वहां से निकलना ज़रूरी था। उसके बाद ही वो लोअर बे के कम्युनिकेशन यूनिट तक पहुंच सकती थी। लेकिन अगर वो तारों की पेचीदगी में ही उलझी रहती तो कीमती वक्त का ज़िया था। अगर वो पैनल पर तवानाई ज़ाया न करती फिर उसके पास एक ही इम्कान रह जाता जिस पर अमल करके वो दरवाज़ा खोल सकती थी। लेकिन इसमें ख़तरा था। दरवाज़ा खुलने पर उसके बचने की ज़मानत नहीं दी जा सकती थी। इस्मत लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। जैकेट उतारकर उसने दोहरी बुलेट प्रूफ के फीते ढीले किए। बुलेट प्रूफ 2 mm तक किसी भी गोली को रोकने की सलाहियत रखती थी। उसके बावजूद निकोल्स की इशारिया 22 की गोलियों के धक्के ऐसे थे जैसे कोई सांड सीने से टकराया हो। अपनी कार में पहुंचकर इस्मत ने पोजीशन बताने वाला ग्लोबल सिस्टम ऑन किया। फौरन ही स्क्रीन पर फेयरफैक्स काउंटी के नक्शे के साथ नीला नुक्ता हरकत करता नजर आया। इस्मत ने किलीन से राब्ता किया। सर, इस्मत बोल रहा हूँ। जॉन, तुम ठीक हो? मुझे धमाके की रिपोर्ट मिली है। मुझे ग्रेनेड इस्तेमाल करना पड़ा था। कहाँ हो तुम? अल्फा से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। मछली ने कांटा निगल लिया है। टारगेट हरकत में है। इस्मत ने स्क्रीन पर नीले नुक्ते पर नज़र डाली। आपके आदमी ठीक वक्त पर पहुँचे थे। वेरी गुड।